begin with the clinical examination of CVS system. This is done under the following headings. First, you have to do the general examination. This has been already covered by Dr. Manvi. So you have to do the clinical general physical examination in detail for every patient, for every system. For example, you have to look for the patient comes first with the symptoms. A cardiovascular patient come with the symptoms of usually dyspnea, fatigue, palpitation, dizziness, and syncope. So you have to definitely look for the anemia, the cyanosis, clubbing, coldness of extremities, the fever, the edema, everything you have to see. So this has been already covered in detail. So I'm not going into the detail of general physical examination, but you have to do the general physical examination. Then systemic examination will include the arterial pulse, which have been already covered by Dr. Balram. So you have to arterial pulse is very, very important in cardiovascular system. Okay, so you have to take arterial pulse in all the positions. Then the examination of the venous pulse, I'll deal in detail. I think you might be having the JVP class differently, but I don't know. So I'll try to cover the venous pulse. And for the examination of heart, you have to cover the inspection, palpation, percussion, and auscultation. So these are done under these headings. So for the examination of venous pulse, what we have to do, see both the arterial and venous pulsations may be seen in the neck, especially in the thin persons. Both the arterial and venous pulsations are seen, but the venous pulsations can easily be occluded by pressure with the finger above the. जब आप clavicle के ऊपर एक finger डालोगे ना, finger से press करोगे, तो venous pulsations जो है वो easily occlude हो सकता है, ठीक है. But जो arterial pulsation होता है वो stronger होता है, वो हार्ट रेट के साथ इंक्रीज हो जाता है माइल्ड एक्सर्शन पे और जल्दी ऑक्लूडेड नहीं होता है. Okay, so you have to remember these points that the arterial pulsations are stronger, increase with the heart rate on mild exertion and cannot be easily occluded. So there are some differences between the carotid arterial pressure and the jugular venous pressure pulse. So you should know this difference. This can be asked. Okay, so carotid arterial pulse is palpable. Jugular venous pulse is not palpable. Carotid atrial pulse is independent of the respiration, but for the jugular venous pulse, the height of the pulsation varies with the respiration. Arterial pulse cannot be easily occluded, but I said earlier, jugular venous pulse is easily occluded. So the arterial pulse is independent of the abdominal pressure, but the jugular venous pulse is the height increases with the abdominal pressure. This is also called the hepatojugular reflex, which I'll deal in detail afterwards. Then the arterial pulse is independent of the position of the patient, but the jugular venous pulse varies with the position of the patient. So you have to examine the jugular venous pulse with the patient inclined at 45-degree angle. I'll tell you afterwards how to do it. Then the carotid arterial pulse has a rapid upward outward movement, and the jugular venous pulse has a rapid inward movement. So carotid arterial pulse has a 1 peak per heartbeat and it has a 2 peaks per heartbeat. So these are the differences you should remember. The details of it has been already covered in the cardiovascular system. So just remember these differences. This can be asked in your viva, or this can be asked during your practical examination. So the characteristic of pulse can be remembered by the mnemonic PULIS, in which the PULIS P stand for palpation. It is not palpable, as I've earlier said. Occlusion, it is easily it can be easily occluded. The location is between the heads of the sternocleidomastoid muscle. Inspiration, height of the JVP drops with the inspiration. This is very important thing. Contour, it has a biphasic form, and the erection of the position, it highs decreases on sitting. So we have to do it in the inclined position. So remember this PULIS, so you will able to remember the characteristic of the JVP. So the jugular venous pulse. So the fluctuations in the right atrial pressure during the cardiac cycle generates a pulse that is transmitted back into the jugular vein. होता क्यों, सबसे पहले important ये कि किस चीज से होता है. तो जब भी cardiac cycle में right atrial pressure में changes, कोई भी fluctuation होगा, तो वो transmit back किस में करेगा, jugular vein में करेगा, ठीक है. तो वही जो pulse होता है वो होता है jugular venous pulse. So it is best examined in the good light. ओके, जो सारे सिस्टम में आप करते हो विद पेशेंट रिक्लाइंस एट 45 डिग्री, क्योंकि अभी हमने बोला कि डिक्रीजेस विद सिटिंग. सो अगर आर्टरियल राइट एट्रियल प्रेशर लो होगा तो
जुगुलर वेनस पल्स में हमें स्मॉल रिक्लाइनिंग एंगल चाहिए। अल्टरनेटिवली जो मैंने बताया था हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स, जो मैंने पहले भी बताया कि हाइट ऑफ द जेवीपी ड्रॉप्स विद द इंस्पिरेशन, ठीक है, हाइट डिक्रीजेस ऑन सेटिंग। सो इसमें क्या होता है कि अगर राइट अपर एब्डोमेन पे आप मैनुअल प्रेशर लगाते हो तो दैट produces a transient increase in the venous return of the heart, which will elevate your jugular venous pulse. Same with the jugular venous pressure also. So this is called hepatojugular reflex. So remember this word. It can be asked in the examination that if you are not able to appreciate the jugular venous pulse, then what will you do? Okay. So what will you say? That you will apply the manual pressure of the right upper side of the abdomen, that will produce the transient increase in the venous return of the heart, which will elevate the, अगर venous return heart में increase होगा तो right atrial pressure obviously increase हो जाएगा, जिससे कि jugular venous pulse भी increase हो जाएगा. So this is called hepatojugular reflux. Okay, so this is the diagram. I'll show you how to measure the jugular venous pressure. So in this diagram, you can see the external jugular vein and the internal jugular vein. So the location of the external jugular vein is, this is the superficial vein. It begins in the parotid gland near the angle of the jaw. It descends through the neck across the sternocleidomastoid. This is sternocleidomastoid muscle. So it will descend through the neck across the sternocleidomastoid muscle, sorry, to empty into the subclavian vein. Okay, this is external jugular vein. Now this is internal jugular vein. So internal jugular vein, this is the larger of the two veins, and it passes down the neck from near the earlobe and behind the angle of the jaw, lateral to the internal and common carotid arteries, and medial to the clavicular head of the sternocleidomastoid muscle to empty into the subclavian vein. So सारे subclavian vein में ही enter होते हैं. So this is not very important the location, but if you know the location, then you will be able to appreciate the pulse. So both the veins act as a manometer for the right atrium, ठीक है, but the internal jugular vein is almost in the लाइन विद द राइट एट्रियम. जो इंटरनल जुगुलर वेन होता है वो बिल्कुल राइट एट्रियम की ही लाइन में होता है. ओके, सो दिस एक्ट्स एज अ बेटर मैनोमीटर एज इट रिफ्लेक्ट्स. इसमें जैसे राइट एट्रियल प्रेशर चेंजेस होगा, वैसे वैसे इंटरनल जुगुलर वेन में भी प्रेशर चेंजेस होंगे, ठीक है. सो दैट एक्ट्स एज अ मैनोमीटर और इट विल रिफ्लेक्ट ऑल द एट्रियल प्रेशर चेंजेस. Okay, so the internal jugular vein is almost in line with the right atrium and acts as a better manometer as it reflects all atrial pressure changes. The venous pulse is not usually visible or palpable. It is obliterated by a finger pressure just above the clavicle. Okay, so the venous pulse pressure also rises temporarily after the manual pressure in the right upper abdomen, जो मैंने आपको पहले बताया, that is the hepatojugular reflex. सो हाउ विल यू मेजर, इसमें आपको देखना है. इसमें क्या करोगे कि पेशेंट को आप सबसे पहले बोलोगे कि अपना सुपाइन पोजीशन में लेट जाए, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे, जो इसका हॉरिजॉन्टल है उसे 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, सो एज टू रिलैक्स द नेक मसल्स एंड विद द चिन पॉइंटिंग स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि हमें राइट साइड में देखना है, तो चिन जो है हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है. फिर then the neck veins are inspected carefully in a good light by looking across the neck from the side of the patient. यहाँ से हम इसके neck के side में देखेंगे, ठीक है. तो अगर हम इसको 45 डिग्री पे रिक्लाइन करते हैं तो द टॉप ऑफ द पल्सेशन इज यूजुअली नॉर्मली जस्ट एट द लेवल ऑफ द क्लेविकल. जहाँ पे क्लेविकल होता है बिल्कुल उसी के पास ही हमें दिखता है पल्सेशन. बट इफ द पल्सेशन इज नॉट सीन नॉर्मली, तो हम क्या कर सकते हैं, हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स पे अप्लाई कर सकते हैं. मतलब राइट अपर एब्डोमेन पे आप प्रेशर लगाओगे तो उसमें वीनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज हिपेटोजुगुलर. उस तरह से आप अप्रिशिएट कर सकते हो. तो प्रेशर कितना लगाना है, 5 to 10 seconds के लिए लगाना है. Okay, that will increase the venous return and thereby that will increase the right atrial pressure. So we have to focus on the right internal jugular vein and look for the pulsation on the right side of the neck. Now what we have to do, we have to identify the highest point of the venous pulsation. जहाँ पे भी आपको venous pulsation सबसे high दिख रहा है वो point note करना है. फिर वहां से एक long rectangular card जो है हॉरिजॉन्टली यहाँ से ऐसे करके प्लेस करना है, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सेंटीमीटर एक आपको एक्सटर्नल एंगल, दिस इज एक्सटर्नल एंगल. सो एक्सटर्नल एंगल से एक राइट एंगल
मतलब कोई स्केल आप ले सकते हो, रेक्टेंगुलर कार्ड ले सकते हो। यूजुअली स्केल होता है जो एक्सटर्नल एंगल पे वर्टिकली खड़ा करोगे और जहाँ पे हाइट ऑफ हाईएस्ट पल्सेशन दिख रहा है वहां से एक एंगल ड्रॉ, तो इट शुड मेक द राइट एंगल, मेकिंग एन एग्जैक्ट राइट एंगल। नाउ वी हैव टू मेजर द वर्टिकल डिस्टेंस इन सेंटीमीटर्स। ये जो डिस्टेंस है जो 3 मीटर इसमें दिख रहा है, ये सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस जो है मेजर करेंगे एक्सटर्नल एंगल से ऊपर जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कार्ड मीट करता है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस में यहाँ पे यूजुअली 5 लिखा है पर यूजुअली 4 ऐड करते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द, ये उस हाइट में जो भी आता है उस हाइट में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल टू द सेंटर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। तो हमें राइट एट्रियल प्रेशर देखना है तो इतना डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि सबसे पहले हम हाइट ऑफ वीनस पल्सेशन, जो सबसे ज्यादा पल्सेशन विजिबल है वो देखेंगे। यहाँ से फिर एक हॉरिजॉन्टल कार्ड लगाएंगे, रूलर लगाएंगे, उसके बाद एक वर्टिकल रूल लगाएंगे एक्सटर्नल एंगल से, ठीक है। जहां पे वो दोनों मीट करेगा वो हाइट हम मेजर करेंगे और इसमें 4 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? जुगुलर वेनस प्रेशर मिल जाएगा। तो यूजुअली इट इज 6 to 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट एट्रियम। अब अगर मोर देन 9 सेंटीमीटर होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। Now, the elevation of the JVP indicates the right atrial pressure. ये आपको मैंने बताया, ठीक है। Elevation of the JVP indicates the right atrial pressure. So, during inspiration, the pressure within the chest decreases और जेवीपी में फॉल होता है, ठीक है। जेवीपी क्या इंडिकेट करता है? राइट एट्रियल प्रेशर, जैसे मैंने बताया। तो अब इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, जेवीपी भी कम हो जाता है। बट दे सम कंडीशन कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसमें क्या होता है कि इंस्पिरेशन से पैराडॉक्सिकल राइज होता है जेवीपी का, जिसको बोलते हैं कॉस्मल साइन। ये आपको पूछा नहीं जाएगा बट एक ये कंडीशन होती है जिसमें कि इंस्पिरेशन से जेवीपी राइज करता है, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया है यहाँ पे, ठीक है। पर राइट हार्ट फेलियर, राइट अगर कभी किसी को राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि राइट एट्रियल प्रेशर क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। रेज हो जाएगा तो जुगुलर वेनस प्रेशर भी रेज हो जाएगा। तो वेन्स जो क्या दिखेंगी? फुल दिखेंगी और वहां पे अपराइट पोजीशन में भी इसमें पल्सेशंस दिखेंगे, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपको बहुत अच्छे से पल्सेशंस दिख जाएंगे। द कंडीशन इज नोन एज राइट हार्ट फेलियर, क्योंकि वो राइट एट्रियल प्रेशर को ही रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। Now this is the waveform of the JVP. So it has three positive, as you can see, it has a three positive waves. The A wave, this is A wave, this is C wave, and this is V wave. And there are two negative waves, that is X wave and Y wave. So as you can see, A wave is produced by the atrial systole. This is followed by the, इसके बाद X descent होता है, marking the descent of the tricuspid ring, tricuspid valve ring, ठीक है। उसके बाद this is interrupted by the C wave. C wave is caused by the tricuspid valve closure. Okay. Now when the atrial pressure rises, क्योंकि atrial systole होगा तो atrial pressure बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा? फिर से एट्रियल फिलिंग होगी, तो उसमें क्या करेगा? वी वेव होगा। नाउ प्रोड्यूसिंग द वी वेव एज द एट्रियल फिल्स पैसिवली ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद क्या होता है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन द, जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा एट्रियल प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जिससे वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी तो उसमें वाइड डिसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी होता है राइट एट्रियल प्रेशर जहां पे भी बढ़ेगा वहां पे पॉजिटिव वेव होगी, जहां पे कम होगा वहां पे नेगेटिव वेव होगी। तो इसमें जब ये एट्रियम में प्रेशर कम हो जाता है, जैसे कि अगर वहां का ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आ गया तो यहाँ पे डिसेंट हो जाता है, ठीक है। एक एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे कोई एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो वहां पे कोई ए वेव भी नहीं होती है। इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। The A wave is produced by the atrial systole. This is followed by the X descent. X descent किसकी वजह से होता है? Descent of the tricuspid valve ring. But this is interrupted by the, उसके पहले क्या होता है कि C tricuspid valve का क्लोजर होता है, जिससे कि हमें C wave मिलता है। फिर एट्रियल प्रेशर फिर से बढ़ता है, जिससे कि V wave प्रोड्यूस होता है एज द एट्रियम फिल्स पैसिवली ड्यूरिंग द वेंट्रिकल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस समय भी प्रेशर एट्रियल प्रेशर राइज होता है। फिर उसके बाद द डिक्लाइन इन द एट्रियल प्रेशर एज द tricuspid valve opens to allow the ventricle filling during the Y descent,
ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ये बुक में भी दी हुई है बहुत डिटेल में, आपको सीवीएस में भी पढ़ाया होगा, ठीक है। बट क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, दिस विल नॉट बी आस्क्ड, बट ये प्रैक्टिकल है तो इतना पता होना चाहिए कि ए सी वी वेव्स किस वजह से होते हैं और एक्स और वाई वेव किस वजह से होती हैं। एबनॉर्मल कंडीशंस आपको नहीं पढ़नी है। Now we come to the proper examination of the heart. So this comes under the following heading: inspection, palpation, percussion and auscultation. तो inspection में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? Shape of the chest. फिर हम क्या देखेंगे कि अदर कोई cardiac pulsations है या और apex beat which is most important, and the inspection for the other pulsations. सो इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोई चेस्ट में डिफॉर्मिटी है क्या? चेस्ट में डिफॉर्मिटी में वी हैव टू लुक फॉर द काइफोसिस, दैट इज द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, scoliosis, that is the sideward bending of the spine, bulging of the precordium, that is enlargement of the heart. कभी कभी कोई कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पेक्टस एस्केवेटिव, इसमें क्या होता है कि हार्ट को वो कंप्रेस कर सकता है जिससे कि हार्ट बीट डिस्प्लेस हो जाती है, जिससे कि हमें लगता है कि हो सकता है कार्डियक इनलार्जमेंट हो। इसमें क्या करता है कि जो चेस्ट वो की स्किन होती है वो डिप कर जाती है, ठीक है। तो पेक्टस एस्केवेटिव भी एक ऐसी कंडीशन होती है। फिर आपको कुछ कुछ चीजें और भी देखनी होती है, जैसे कि मान लो कि कोई स्कैर है क्या, स्कैर अगर चेस्ट पे होता है तो हमें लगता है कि हाँ पहले इसकी कार्डिक वॉल सर्जरी वगैरह हो चुकी है। या फिर हमें देखना होता है कि कोई वीनस कोलैटरल्स हैं क्या चेस्ट पे, ठीक है। या फिर वीनस कोलैटरल्स हैं शोल्डर के, अगर मान लो वीनस कोलैटरल्स चेस्ट पे होते हैं, वेन्स बड़े बड़े दिखते हैं, तो मतलब एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वो सारी चीजें आपको पढ़नी नहीं है, बट ऑब्वियसली यू हैव टू लुक फॉर द venous collaterals on the chest and the shoulder, or if there is any scar mark on the chest. Then for the inspection of the cardiac pulsation and apex beat, the precordium is inspected from all the sides to see if there is any cardiac pulsation. Any pulsation in this region is called the cardiac impulse or cardiac pulsation. ये क्यों होता है? ड्यू टू द फॉरवर्ड सिस्टोलिक थ्रस्ट ऑफ द एपेक्स ऑन द, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पे एक थ्रस्ट आएगा, ठीक है, सिस्टोलिक थ्रस्ट आएगा एपेक्स ऑफ द हार्ट पे लेफ्ट वेंट्रिकल पे, ठीक है, तो उससे कार्डियक पल्सेशन, कार्डियक इंपल्स से कार्डियक पल्सेशन होगा। फिर एपेक्स बीट, व्हाट इज एपेक्स बीट? सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज द लोएस्ट एंड द मोस्ट लैटरल और मोस्ट आउटर मोस्ट area at which the cardiac impulse can be palpated. So it is the lowest and the most lateral point at which the cardiac impulse can be palpated. This is usually visible and palpable, and it is located 8 to 10 centimeters from the mid-sternal line in the fifth intercostal space. Okay, I'll repeat again. This is the lowest and the most lateral point at which the cardiac impulse can be palpated. It is usually visible, palpable, and it is located 8 to 10 centimeters from the mid-sternal line in the fifth intercostal space. Okay. कभी कभी नॉर्मली इट इज ऑलमोस्ट विद इन द मिड क्लेविकुलर लाइन पे ही होता है, ठीक है, निप्पल लाइन मेल्स में। कभी कभी एपेक्स बीट जो होता है विजिबल नहीं होता है नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि हो सकता है एपेक्स बीट जो हो रिब के पीछे हो, या हो सकता है कि जो चेस्ट वॉल हो वो बहुत थिक हो ड्यू टू फैट और मसल, या हो सकता है इम्फाइजेमेटस। व्हाट इज इम्फाइजेमेटस लंग? इसमें क्या होता है कि जो एल्वोलाई और जो एयर सैक्स होते हैं उनकी वॉल में डिसरप्शन होता है, जिसको बोलते हैं एम्फाइजीमा। तो एम्फाइजेमेटस लंग जो होता है वो हार्ट के ऊपर तक आ जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कार्डिक एपेक्स बीटा अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो। और या तो ब्रेस्ट में भी वेरी पेंडुलस इन द फीमेल, सो उस समय भी आप एपेक्स बीट नहीं पैल्पेट कर पाते हो, इंस्पेक्ट नहीं कर पाते हो। भी इंस्पेक्शन चल रहा है तो देख नहीं सकते हो। एपेक्स बीट हम इंस्पेक्शन में भी करते हैं, एपेक्स बीट हम पैल्पेशन में भी करते हैं। उसके अलावा क्या देखोगे इंस्पेक्शन में कि कुछ अदर पल्सेशंस तो नहीं है। कहाँ पर देखना है? प्रीकॉर्डियम में और नियर बाई एरिया में, ठीक है। तो हमें देखना है कि प्रिकॉर्डियम में या फिर कहीं नियर बाई एरिया में कोई पल्सेशंस तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि आर्टरियल पल्सेशंस इन द नेक में बी विजिबल इन द कोई भी हाइपरडायनेमिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लो कि एंजाइटी है या किसी को हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपरटेंशन है या यूबिटिक रिकजिटेशन है, तो किसी भी हाइपरडायनेमिक कंडीशन में नेक में आर्टरियल पल्सेशंस दिख सकती हैं, ठीक है। एंड द पल्सेशंस टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द अपर स्टर्नम, जैसे फॉर एग्जांपल एयोर्टिक एनिज्म जब आगे पढ़ोगे कोई कोई कंडीशन ऐसे होती है जिसमें स्टर्नम के अपर लेफ्ट और राइट साइड में भी हमें पल्सेशंस दिख सकती हैं। फिर enlargement of the right ventricle or enlarged left atrium due to severe mitral regurgitation,
produces the pulsations in the right upper parasternal area. Parasternal area क्या होता है? Left upper parasternal, left side में sternum के बगल में, upper sternum के ऊपर left side में आप देख सकते हो कभी कभी वहां पे पल्सेशंस होती है, तो वो किस चीज से हो सकती है कि राइट वेंट्रिकल का इनलार्जमेंट हो या लेफ्ट एट्रियम का इनलार्जमेंट हो, इसकी वजह से हम वहां पे पल्सेशंस देख सकते हैं। फिर कभी कभी इपिगैस्ट्रम में भी पल्सेशंस होती हैं, तो क्यों हो सकती हैं? दे आर most commonly due to the pulsations of abdominal aorta increased by the emotional excitement as in the thin individuals, or due to the enlargement of the right ventricle, or due to it can be due to the hepatic pulsations from the tricuspid region। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें इपिगैस्ट्रम में भी पल्सेशंस देख सकती हैं, ठीक है। और हमें कहाँ पल्सेशंस देखनी होती है? इन द सुपरफिशियल आर्टरीज ऑफ द thorax। कभी कभी सुपरफिशियल आर्टरीज में भी पल्सेशंस होती है, so you have to look for the pulsations in the other areas, for example the atrial pulsations in the neck, या कभी कभी pulsations to the right and left of the upper sternum, pulsations of the right ventricle, pulsations in the epigastrium, and pulsations in the superficial arteries of the thorax। तो इस areas में हमें pulsations देखनी होती है। So this is all about inspection। Okay, take a deep breath, then we'll start with the palpation। Okay, सो द पैल्पेशन में क्या देखना होता है? पैल्पेशन ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया का पैल्पेशन आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि हम उसको 3 फिंगर से करते हैं, एक्सटर्नल नॉच में हम अपने फिंगर इंसर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ट्रेकिया सेंट्रल पोजीशन में या किसी पोजीशन में डेविएटेड तो नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन इसमें हम पैल्पेशन ट्रेकिया का करते हैं। फिर हम एपेक्स बीट तो ऑब्वियसली पैल्पेट करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एपेक्स बीट की हम पोजिशन देखते हैं और एपेक्स बीट का हम कैरेक्टर देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? थ्रिल्स देखते हैं और पैरास्टर्नल हीप, ये हम आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एपेक्स बीट। तो एपेक्स बीट हम कैसे देखते हैं? Okay, so for locating the position of the apex beat by palpation, what you have to do? You have to put the flat end of your hand over the heart, the base of the palm over the base of the heart, and the fingers pointing towards the apex। apex कहाँ पे होता है? outer most area होता है to the fifth intercostal space in the mid clavicular line। तो यहाँ पे almost होता है lowest and the outermost area। तो यहाँ पे हमें अपने फिंगर्स रखनी होती है और यहाँ पे बेस ऑफ द हार्ट पे अपना बेस ऑफ पाम रखना होता है और फिर हमें पैल्पेट करना होता है, ठीक है। Once the cardiac pulsation is felt, the upper ulnar board of the hand and then the tip of the index finger is used to locate and confirm the point of the apex beat already defined by। हमें क्या करना होता है कि अगर कार्डियक पल्सेशंस यहाँ पे फेल्ट हो जाती है, फिर अपना अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड और टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर से हम लोकेट कर पाते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ पे एपेक्स बीट हो। इसलिए हमें वैसे भी हमें इंस्पेक्शन पे तो दिख ही जाता है, बट ये हम कंफर्म करते हैं पैल्पेशन पे। बहुत इजी होता है, यू कैन इजीली अप्रिशिएट द कार्डिक ये एपेक्स बीट, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। देन द एपेक्स बीट शुड बी मार्क बाय द मार्कर पेन, जहां पे भी वहां पे मार्कर पेन लगा दो, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन for the apex beat, for locating the position of the apex beat by palpation, the flat of the hand is placed over the heart, the base over the palm, base of the palm over the base of the heart, and then the fingers pointing towards the apex। So once the cardiac pulsation is felt, the ulnar border of the hand and the tip of the index finger is used to locate the apex beat already defined by inspection। Then the apex beat should be marked by the marker pen। Okay, so where is the position of the apex beat? The apex beat is located 8 to 10 centimeter from the mid sternal line in the fifth intercostal space। तो सबसे पहले तो हमें पता चलना है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस को ही हम कैसे लोकेट करेंगे। तो लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सटर्नल एंगल तो आता है सबको। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? फॉर दिस इज द जंक्शन बिटवीन द मैन्यूब्रियम स्टर्नी एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है।
तो ये होता है एक्सटर्नल एंगल, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस। सबसे पहले हम इसको लोकेट कर लिए जहाँ पे मैन्युब्री बॉडी ऑफ स्टर्नम और मैन्युब्री स्टर्नी का जंक्शन होता है, ठीक है। वो जो सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज होता है वो उस स्टर्नम पे उस लेवल पे आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। तो वहां से सेकेंड कोस्टल, और फिर सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज के नीचे ही जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेकेंड रिब के नीचे होता है, ओके। फिर उसके बाद जब हम सेकेंड रिब लोकेट कर लिए, उसके बाद हम नीचे नीचे काउंट करते जाएंगे रिब को, ठीक है। आई रिपीट अगेन, I think okay, I don't have it. The external angle, this is the junction between the manubrium sterni and the body of sternum. उसको पहले आपने locate कर दिया. This the second coastal cartilage articulates with the sternum at this level. ठीक है, यहाँ पे हमारा second coastal cartilage दिख गया. Now the second coastal cartilage is below the second rib. तो जहां पे आपको सेकेंड कोस्टल कार्टिलेज रहता है उसके ऊपर क्या हुआ, सेकेंड रिब हुआ। अब उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ऐसे करके नीचे काउंट करके और आप लोकेट कर लो, ठीक है। अगर एपेक्स बीट पाल्पेट नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को दूसरी साइड पे टर्न कर सकते हैं या उसको बैठा के आगे की तरफ झुका सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें एपेक्स बीट पाल्पेट हो जाता है। सो द पेशेंट इज टर्न्ड ओवर टू द लेफ्ट साइड एंड सिट्स अप एंड बेंड्स फॉरवर्ड, ओके। Now the character of the apex beat. So in normal persons, the apex beat generally raises the palpating finger. Okay. So the strength of the thrust increases after exercise, या किसी exercise करके आओगे या nervousness में या hypothyroidism या left ventricle hypertrophy, कोई भी ऐसी condition होती है तो उसमें क्या कहता है कि हमारा उसका thrust बढ़ जाता है, जैसे कि हमें बहुत अच्छे से palpate हो सकता है, okay। अब हम इसे करते ही क्यों हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो द इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी और डायलिटेशन में शिफ्ट द, अगर किसी भी हाइपरट्रॉफी या डायलिटेशन की वजह से अगर हार्ट इनलार्ज हो जाता है तो उसमें एपेक्स बीट शिफ्ट हो जाएगी। या फिर कोई भी ऐसी लंग की कंडीशन, कोई भी ऐसी लंग की डिजीज जो मीडियल स्टीनम को पुश या पुल कर दे, तो उससे क्या होगी, एपेक्स बीट ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी हाइपरकाइनेटिक सर्कुलेशन में, जैसे आप एक्सरसाइज करके आते हो या नर्वसनेस रहता है या लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होता है, तो उसमें डिफ्यूज सस्टेन्ड और मोर फोर्सफुल थ्रस्ट होता है, ठीक है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि एपेक्स बीट अगर इतना ज्यादा फोर्सफुल थ्रस्ट से आ रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशन है। या तो टैपिंग और द स्लैपिंग एपेक्स बीट किसमें मिलता है, मीट्रल स्टेनोसिस में, एकदम टक 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 ऐसा था, कोई टैप कर रहा है या फिर कोई स्लैप कर रहा है, ऐसी एपेक्स बीट मिलती है, तो उसमें समझ जाते हैं कि पेशेंट को मिट्रल स्टेनोसिस है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, अगर किसी भी कंडीशन जिसमें कि हार्ट जो इनलार्ज हो जाता है हाइपरट्रॉफी डायलिटेशन की वजह से, उसमें हो सकता है, या लंग, वहां पे क्या है, हार्ट, लंग, मीडियल स्टेनम, यही चीज है। तो या तो मीडियल स्टेनम कभी पुल और पुश हो जाता है तो ऑब्वियसली एपेक्स बीट शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कोई भी हाइपरकाइनेटिक सिचुएशन में वो फोर्सफुल थ्रस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे कि वो बहुत डिफ्यूज और सस्टेन हो जाता है। या तो अगर मिट्रल स्टेनोसिस होता है उसमें टैपिंग या स्लैपिंग एपेक्स बीट मिलती है। Now thrills. What are thrills? When the vibrations from the heart or its great vessels are transmitted to the palpating finger, there कोई भी वाइब्रेशन हार्ट से या तो ग्रेट वेसल से, कोई भी बड़े वेसल से अगर वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है पैल्पेटिंग फिंगर पे, तो उसको बोलते हैं थिल। तो थिल यूजुअली क्या होता है, पैल्पेबल मरमर होता है, मरमर हम पढ़ेंगे जो हमें टच से सुनाई देता है, बट अगर वो पैल्पेट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थ्रिल। और ये क्यों होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द ब्लड passes थ्रू द narrowed wall or when there is an abdominal blood flow as in the congenital defects, और if the blood flow बहुत रैपिड होगा, मतलब किसी भी ऐसे कंडीशन में जहां पे कोई अगर नैरो होगी तो ऑब्वियसली बहुत तेज फ्लो होगा, मतलब बहुत ही आवाज करेगा, ठीक है। और या तो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा या किसी कंजेनाइटल कंडीशन में जहां पे मरमर हमें पैल्पेट होता है, जहां पे भी वाइब्रेशंस आते हैं उसको हम बोलते हैं थ्रिल, ओके। सो पैरास्टर्नल हीव क्या होता है, जैसे ये ऐसे करते हैं पैरास्टर्नल हीव को, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। ये क्या होता है, दिस इज एलिसिटेटेड बाय प्लेसिंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड
जस्ट लेफ्ट, ये स्टर्नम है हमारा, इसके लेफ्ट में अल्नर बॉर्डर ऑफ हैंड पे जब आप रखोगे तो आप इसमें पल्सेशंस फील करोगे, ठीक है। अगर वो वैसा पल्सेशन होता है दैट इज कॉल्ड पैरा स्टर्नल हीप। पैरा स्टर्नल में स्टर्नम के बगल में पैरा स्टर्नल हीप, और ये इंडिकेट करता है देयर इज अ condition which is producing the right ventricle hypertrophy. Now for the percussion, the upper border of the lever is first demarcated by starting the percussion downwards along the mid-clavicle line till the resonance changes. Percussion as per se is not recommended in the cardiovascular system and it is not done routinely, but we have to locate for the borders of the heart. So that's the importance of कि आप left or right border of heart इससे purpose कर सकते हो, but this is not really important in the cardiovascular system. This is very important in the respiratory system. बट यू शुड नो व्हाट, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में परकशन करने के लिए बोला गया तो आप क्या करोगे, अदरवाइज इसमें करने की जरूरत नहीं होती है. सो द अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज डिमार्केटेड फर्स्ट बाय स्टार्टिंग द, कहाँ से परकशन स्टार्ट करोगे, मिड क्लेविकुलर लाइन से डाउनवर्ड, जहां पे हमें रेजोनेंस डलनेस में नहीं चेंज हो जाती है. जहां पे भी लीवर स्टार्ट होगा वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस जो है वो डल हो जाएगा, ठीक है. Then starting from the mid axillary line, second or third spaces above the liver dullness, percussion is carried out towards the right sternal margin. अब क्या होता है कि जहां पे liver dullness आपको फील हुआ, उससे 2-3 स्पेस ऊपर आओगे मिड एक्सिलरी लाइन में, और फिर उसके बाद राइट स्टर्नल मार्जिन की तरफ जाओगे, ठीक है. नॉर्मली द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम लाइज बिहाइंड द स्टर्नम, वहां पे जाओगे, बट यूजली ये स्टर्नम के पीछे होता है, पर कभी कभी लार्ज हो जाता है तो आपको राइट साइड में पैल्पेट पर्कस हो सकता है, बट यूजली राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट कहाँ पर होता है, स्टर्नम के पीछे होता है. ऐसे करके पर्कस करते हैं. पर्कशन आपको डिटेल में पढ़ाया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में. नाउ अगर लेफ्ट हार्ट बॉर्डर करना है पर्कस तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एपेक्स बीट की पोजीशन को पैल्पेट करना होता है. फिर पर्कशन कहाँ कहाँ पे करना होता है, फिफ्थ, फोर्थ एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेसेस, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन से स्टार्ट करेंगे एंड गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट टिल द नोट चेंजेस फ्रॉम द रेजोनेंस टू डल. जब तक रेजोनेंस से डल में नहीं चेंज हो जाता तब तक हम पर्कस करते रहेंगे. Each point where dullness appears is marked with ink and when these points, जैसे जैसे dullness होगा आप एक पेन से वहां पे डॉट लगाते जाओगे और फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे. जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो आपको लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट मार्क हो जाएगा. द एरिया ऑफ कार्डियक डलनेस इंक्रीजेस इन प्लूरल effusion and it may be decrease in emphysema. Okay, so now the auscultation of the heart. So now it's a good practice to palpate the carotid artery while listening to the heart sounds because the carotid pulse coincide with the first heart. हमेशा ये याद रखना, जो carotid, this can be asked also, कि जो carotid pulse होता है वो first heart sound के साथ coincide होता है, ठीक है. तो इसलिए हमें carotid artery भी, जब भी हम auscultate करना शुरू करते हैं तो हमें carotid artery भी palpate करना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद 4 एरियाज, जैसे ये 4 एरियाज होते हैं हार्ट के, ठीक है. सबसे पहले कि हमें क्या करना होता है कि 4 कार्डिक एरिया जो अपने वॉल्व से होते हैं, जैसे पल्मोनरी वॉल, एयोर्टिक वॉल, ऐसे करके ट्राइकस्पिड मेट्रल वॉल्व होते हैं, वहां पे हमें सबसे पहले जो होता है ऑस्कल्टेट करना होता है. उसके बाद इनके बीच में ऑस्कल्टेट करना होता है, ठीक है. तो पहले एरिया क्या है, मिट्रल, ये दिस इज मिट्रल एरिया. व्हाट इज मिट्रल एरिया, दिस करस्पॉन्ड्स टू द एपेक्स, जहां पे हमारा एपेक्स पीट होता है, that is fifth intercostal space में 8 to 10 centimeters from the mid sternal line, ठीक है. तो ये हमारा होता है मिट्रल एरिया. फिर हमारा होता है ये ट्राइकस्पिड एरिया, ये वाला जो एरिया है वो ट्राइकस्पिड एरिया होता है. दिस एरिया लाइज जस्ट लेफ्ट टू द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम, जहां पे जैसे ये स्टर्नम खत्म हो रहा है इसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड एरिया. ओके, नाउ the this is pulmonary area. This lies to the left of the sternum in the second intercostal. ये second intercostal space इसी के left में होता है, और second intercostal space की just right में क्या होता है, aortic area. So these are the 4 areas: aortic area, pulmonary area,
माइट्रल एरिया और ट्राइकस्पिड एरिया, ये पहले जहाँ है वहां पे हमें पर्कस ऑस्कल्टेट करना होता है और फिर इनके बीच में करना होता है. ओवर ऑल दीज एरियाज ऑफ स्कल्टेशन, second, first or second heart sounds are heard clearly. Okay, though the first heart, जो first heart sound होता है, वैसे तो चारों एरियाज पे फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड अच्छे से सुनाई देता है, बट जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो माइट्रल और ट्राइकस्पिड एरियाज में ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है, और जो सेकंड हार्ट साउंड होता है वो अयोटिक और पल्मोनरी एरिया के पास ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. So this is very important slide, the difference between the first and the second. क्योंकि थर्ड और फोर्थ साउंड तो सुनाई देता नहीं है, तो फिर वो आपको अप्रिशिएट भी नहीं करना है, बट आपको फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड आपको सुनाई देना चाहिए. So the major difference between the first and the second heart sound is the first heart sound is due to the closure of the AV valves. Ventricular valve की वजह से क्लोज होने की वजह से होता है, and this marks the onset of the ventricular systole. Okay, so the first heart sound is due to the closure of the AV valves. ठीक है, इसीलिए ये माइट्रल और ट्राइकस्पिड एरिया पे ज्यादा सुनाई देता है, एंड दिस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जो सेकंड हार्ट साउंड होता है ये दिस इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वॉल्स, इसीलिए ये पल्मोनरी और aortic एरिया पे ज्यादा अच्छे से सुनाई देता है, एंड दिस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. Now the first heart sound is low pitched and the second heart sound is high pitched. First heart sound की frequency 30 to 80 hertz होती है और ये बहुत loud sound produce करता है, जैसे लब ऐसे करके. तो जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है वो 150 to 200 हर्ट्ज प्रोड्यूस होता है, और ये बहुत ही शार्प साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये साउंड करता है डप ऐसे करके. ठीक है, फिर ड्यूरेशन जो होता है फर्स्ट हार्ट साउंड का वो 0.1 to 0.17 सेकेंड्स होता है, और सेकेंड हार्ट साउंड का 0.1 to 0.14 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट सेम ही होता है. जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो बेटर हर्ट किस पे होता है, माइट्रल और ट्राइकस्पिड एरियाज पे, और जो सेकंड हार्ट साउंड होता है वो पल्मोनरी और अयोटिक एरियाज पे. जो फर्स्ट साउंड होता है दैट इज सिंक्रोनस विद द कैरोटिड आर्टरी पल्सेशंस. ठीक है, जो मैंने पहले बताया था. और ये जो सेकंड हार्ट साउंड होता है कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन के जस्ट बाद सुनाई देता है. And the first heart sound coincides with the R wave of the ECG, and this coincides, second heart sound coincides with the T wave of the ECG. So this is very important slide. Just please mug for this slide. This can be asked in your exam. What is the difference between the, how will you appreciate the first and the second heart sound? What is the difference between the first and the second heart sound? ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये इस एरिया पे ज्यादा अच्छा सुन रहा है, वो इस एरिया पे ज्यादा सुनाई दे रहा है, ये लो पिच है, वो हाई पिच है, वो ऐसे लब की तरह साउंड कर रहा है, वो डब की तरह साउंड कर रहा है, और कैरोटिड आर्टरी पल्सेशन से उसका रिलेशन. ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी किस वजह से होता है ये सारा तो फिर उसके रीजंस हो जाते हैं, बट आप कैसे अप्रिशिएट किए कि ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, सेकंड हार्ट साउंड है, तो वो आपको आना चाहिए. Now the third and the fourth heart sound, these are the low frequency sounds that are produced occurs during the early and the late diastole. Okay, बहुत ही low frequency sounds होते हैं. This can be better heard with the bell of the stethoscope कहाँ पे, cardiac apex पे, when the patient leaning slightly forward. Okay, the third heart sound is associated with the rapid distension of the ventriculus in early diastole, and the fourth sound is usually heard if the atrial systole is particularly forceful. Okay, तो ये होता है सेकेंड और थर्ड हार्ट साउंड, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो किसकी वजह से होता है. जैसे दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हार्ट साउंड, लब और आप डब दे सकते हो. इसका लब डब फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड का फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ये इसलिए दिखाएं क्योंकि देखो इनके कंपेयर में जो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड होते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो होती है, तो ये डायग्राम सिर्फ इसको डिनोट करता है. नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ द हार्ट साउंड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो व्हाट इज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग फर्स्ट हार्ट साउंड का तो बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता है, क्योंकि बिकॉज दीज टू कंपोनेंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. माइट्रल और aortic कंपोनेंट जो होता है वो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होता है. सॉरी, aortic एंड ये कहते हैं माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाला. So, but the splitting of the second heart sound is easier to appreciate because there is a wide gap between the aortic and the
पल्मोनरी कंपोनेंट्स, आयोटिक और पल्मोनरी कंपोनेंट्स में बहुत ज्यादा वाइड गैप होता है, इसकी वजह से हमें सेकेंड हार्ट साउंड जो है की स्प्लिटिंग जो है वो इजिली हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यूजली ये दिस इज हर्ड इन चिल्ड्रन एंड स्प्लिटिंग बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रिपल रिदम और गैलोप? जब ये क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग है वो हम ट्रिपल रिदम से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो नॉर्मल फर्स्ट और सेकंड हाउस साउंड होता है उसके साथ अगर एडिशनल साउंड होता है, अगर थर्ड और फोर्थ साउंड उसके साथ ऐड हो जाते हैं तो वो कभी कभी लब डब डब ऐसे करके आते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रिपल रिदम। ओके, सो द स्प्लिटिंग ऑफ द हार्ट साउंड्स मस्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द triple rhythm which is produced by the addition of the third and the fourth heart sounds to the normal first and second heart sound। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड हमें बहुत अच्छे से सुनाई देता है, पर इसमें थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड ऐड हो जाता है तो उसकी वजह से ये लब डब डब ऐसे होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल रिदम या गैलोप रिदम। यूजुअली तब होता है जब हार्ट रेट 100 पर मिनट के ऊपर होता है। When either of these are prominent or audible, they produce the triple rhythm। जब इनमें से कोई भी prominent या audible हो जाता है तो इसको बोलते हैं triple rhythm। Usually ये left ventricle। So these are not the normal findings, but you should at least know the names। Now the adventitious or the extra sounds, these may occur along with or may replace the hard sounds। और इसमें क्या होता है, for example murmurs। murmurs क्या होता है, these are longer than the hard sounds and this may be systolic or diastolic and have a blowing or swishing quality। पहली बात तो murmur होता क्या है, this is due to the turbulent flow within the heart or the great। कभी भी heart या तो ग्रेट वेसल्स में अगर बहुत ही टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है, या तो एडी करेंट्स होती हैं, तो उनके वजह से ये मरमर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें मरमर का क्या क्या नोट करना होता है, उसका लाउडनेस, उसकी क्वालिटी, उसका लोकेशन और उसकी टाइमिंग्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बल्बुलर डिफेक्ट्स अगर कुछ भी होता है, जैसे चेंज इन साइज हो गई या कोई डिफॉर्मिटी होती है, तो उसमें यूजुअली हमें मरमर मिलता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ कुछ और चीजें होती है, जैसे पेरिकार्डियल फ्रिक्शन या रब। इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि दो ड्राई पीस लेदर के, जो दो ड्राई पीस उसको रब किया जा रहा है, ठीक है, वैसी आवाज होती है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन में, यूजुअली पेरिकार्डाइटिस में होता है। फिर एक होता है ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप यूजुअली माइट्रल स्टेनोसिस में सुनाई देता है। फिर होता है इजेक्शन क्लिक्स। इजेक्शन क्लिक्स आता है ड्यू टू द स्टेनोसिस ऑफ द आयोटिक और पल्मोनरी और आयोटिक वॉल्व में कभी भी स्टेनोसिस हो जाता है, उसकी वजह से इजेक्शन क्लिक्स होते हैं। फिर हमारा होता है मिड सिस्टोलिक, जब माइट्रल वॉल्व कोलैप्स हो जाता है उसमें मिड सिस्टोलिक क्लिक्स होते हैं। सो दीज आर एबनॉर्मल और द एक्स्ट्रा साउंड्स, ठीक है। तो यूजुअली कुछ कुछ कंडीशंस में कुछ कुछ साउंड सुनाई देते हैं, बट बिकॉज यू आर राइट नाउ इन फिजियोलॉजी, सो यू विल बी एग्जामिनिंग द नॉर्मल पर्सन, बट यू शुड नो द नेम कि हम अगर हम एक्स्ट्रा साउंड से एडवेंटिशियस साउंड सुनते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दिस कैन बी द मर्मर्स, दिस कैन बी द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन, this can be the opening snap, this can be the ejection clicks, and this can be the mid systolic clicks। Okay, so this is all about the cardiovascular system examination। So dear students, you should remember at least the points उसमें आपको क्या क्या देखना होता है। So I am just briefing you up। सबसे पहले तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आर्टरी पल्स, बीपी वगैरह ये सब तो आपको देखनी ही है। साथ में वीनस पल्स का एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया, जेवीपी। फिर एग्जामिनेशन द हार्ट में इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ठीक है। हमें पल्सेशन नेक पे देखने होते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा इंस्पेक्शन में जो हमारा होता है शेप ऑफ द चेस्ट हमें देखना होता है, और कार्डिक पल्सेशन और एपेक्स बीट देखना होता है, ठीक है। फिर पैल्पेशन में हमें और या फिर अदर पल्सेशंस भी देखने होते हैं। फिर पैल्पेशन में हमें ट्रेकिया को पैल्पेट करना होता है, एपेक्स बीट को पैल्पेट करना होता है, ठीक है। और हमें थ्रिल्स देखने होते हैं और पैरास्टर्नल हीव्स देखने होते हैं। परकशन में लेफ्ट और राइट बॉर्डर आपको फोकस करना होता है। फिर जो ऑस्कल्टेशन होता है उसमें यूजुअली फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड सुनना होता है, या फिर हमें देखना होता है कि कोई एबनॉर्मल मरमर वगैरह तो नहीं, एबनॉर्मल साउंड तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मरमर वगैरह तो नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एबनॉर्मल कंडीशंस आपको नहीं पढ़नी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस वजह से क्या होता है, मतलब क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें कार्डियक पल्सेशंस जो है वो फील हो सकते हैं, ठीक है। So this is all about the
cardiovascular system examination. So regarding the practical, if you have any doubt, not I'm not going for the theory part, but regarding the practical, if you have any doubt, any significant doubt, then you can ask me on the WhatsApp, or later on you can also ask me on my WhatsApp number. So in the OSPE, you can be asked to palpate the apex width to locate the apex width, which is very important. So you have to start from the same thing. You have to wash your hand. You have to introduce yourself to the patient. You have to stand on the right side of the subject. You have to expose the chest completely. You have to inspect the precordium. And you have to see if there is any pulsations. Then you have to place the left flat of your hand on the precordium, its base and the base of the heart, and the fingers towards apex. Then you have to use the ulnar border of your hand to locate the apex bit. Then you have to use the tip of your forefinger to confirm the apex bit, and you have to mark it. Then you have to count the intercostal space, and you have to report the exact position of the apex bit. So the important is the apex bit, and second can be asked in the space to auscultate the mitral area for the heart source. So again, you have to stand on the right side of the patients, and then you have to check the correct functioning of the stethoscope first. Then you have to locate the apex pit, and you have to mark it position. Then you have to apply the stethoscope to the ears, and then place your diaphragm on the mitral area. Then you have to listen the heart sounds, and you have to check if there is any carotid artery pulse, if it coincides with the carotid artery pulse. So these are the steps. So you should, in the OSPE, you can be asked to locate the apex pit, or you can be asked to auscultate the mitral area for the heart sounds. So this is all about the cardiovascular system examination. So just go through it in the from the book, and just correlate it with the theory thing also, with the cardiac cycle also. So I'll suggest first read the cardiac cycle again, and then study this practical, and then try to correlate it with the JVP and all. And that is for the theoretical thing. But for the practical thing, you should know the points at least what you have to do. Especially in this, the inspection and the palpation is very important, and obviously the for the clinical point of view, auscultation is also very important. But from your side, at least the inspection and the palpation is important.
So from the right side of why we have to stand from the right side of the patient, because from if we'll stand on the right side of the patient, then we will examine, it is easier to examine the jugular veins, the apex pit and the abdominal viscera. So that's why we usually stand on the right side of the patient. और दूसरा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर मान लो कि हम राइट साइड ऑफ पेशेंट के खड़े होते हैं, तो फिर क्योंकि हम यूजुअली राइट हैंडेड होते हैं, तो अगर हम राइट साइड ऑफ पेशेंट के खड़े होते हैं, तो यूजुअली जो लीवर का एज है या फिर किडनी की बैलोटिंग वगैरह, ये सारा हम ज्यादा सेंसिटिवली वहाँ पे अपने फिंगर से फील कर पाते हैं. सो यूजुअली द राइट साइड ऑफ द पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल बिकॉज वी कैन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम द राइट साइड. तो यूजुअली हम इसलिए राइट साइड ऑफ द पेशेंट खड़े रहते हैं. ठीक है. Okay, so I am ending this examination, clinical examination of the cardiovascular system. But please read and go through it today only, so you'll able to recall the things. And if you have any problem, then you can please ask me on my WhatsApp number. So thank you so much.